اور میں پرسنل طور پر بہت بلیسڈ ہوتا ہوں جب یہاں پر آتا ہوں۔ یعقوب کا خط 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھیں گے۔ 16ویں آیت کا دوسرا حصہ آج ہم اس پر غور کریں گے، لیکن 16ویں آیت سے پڑھیں گے۔ یعقوب کا خط 5واں باب 16ویں آیت۔ کوئی بھی بہن یا بھائی جس کے پاس مائک ہو وہ پڑھ دے۔ جی بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ جی جس پر ہم بات کریں گے وہ دوسرا حصہ ہے آج کا۔ جی راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ خدا کی پاک نام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پا سکتے ہیں۔ آمین۔ بیٹھے تشریف رکھیں، خدا آپ سب کو برکت دے، بلیس کرے۔ میں شکر گزار ہوں خداوند کا جس کے فضل سے اس جگہ پر موجود ہوں، آپ کے درمیان موجود ہوں، کیونکہ اگر اس کا فضل نہ ہو تو انسان کچھ بھی کر نہیں سکتا۔ اس کے بعد یہ تو آسمان کی بات ہے، خدا کی بات ہے، زمین پر رہتے ہوئے بھی اس نے ہمارے اوپر ہمارے بزرگ، ہمارے رہنما، ہمارے استاد، ہمارے سینئر خادم رکھے ہوتے ہیں، ان کا بھی فضل بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ بھی فضل ہی کرتے ہیں، وہ بھی اپنی فیور کو جاری کرتے ہیں اور اپنی جگہ پر، اپنی سیٹ پر، اپنے مائک پر، اپنے پلپٹ پر کھڑے ہو کر بولنے کا موقع دیتے ہیں، اور یہ بھی خاص ایک فضل ہے۔ سب کہیں گے ہاللویا۔ اور میں اس فیور کے لیے، اس بات کے لیے، میں اس حوصلہ افزائی کے لیے کہ خدا کے بزرگ خادم جو ہم سے موسٹ ترین سینئر ہیں، ہم ان کے سامنے بالکل چھوٹے بچے کی مانند ہیں، لیکن وہ ہمیں مائک اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ ہمیں ٹرین کر رہے ہیں، ہمیں یہاں پر کھڑا کر کے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ واقعی وہ ہمارے بڑے ہیں، اور اپنے سامنے کھڑے کرا کر وہ سارا کام جو خود کر رہے ہیں، جب اس کے بچے جب کرتے ہیں تو ان کو چیک بھی کیا جاتا ہے اور ان کو بلیس بھی کیا جاتا ہے۔ سب کہہ کے ہاللویا۔ شکر گزار ہوں، آپ کا شکریہ بہت بہت۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آئیں گرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر اس جگہ سے جب آپ ڈیلی سیکھتے ہیں تو ہمیں منتھلی موقع ملتا ہے، ہر دفعہ یہ میں کہتا ہوں، لیکن آپ ڈیلی وہ باتیں سیکھتے ہیں جن کو ہم منتھلی ان سے سیکھتے ہیں اپنے بزرگ سے۔ لیکن آج میں جب بھی میں آتا ہوں یہاں پر تو میں انکریجمنٹ کا میسج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آتا ہوں۔ تعلیم آپ کے پاس بہت ہے، توبہ کی مجھے نہیں لگتا کسی کو ضرورت ہو، تقریباً توبہ یافتہ ہے، بیپٹائز یافتہ ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو خدا ضرور بات کرتا ہے کسی نہ کسی خادم کے وسیلہ سے، کسی نہ کسی پریچر کے وسیلہ سے، کسی نہ کسی جونیئر سینئر کے وسیلہ سے۔ اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر صرف جونیئر ہی نہیں بلکہ سینئر سے سینئر تر لوگ بول کر جاتے ہیں۔ ہاللویا۔ ہم فیس بک پر دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے چیئرمین اور بہت سارے ہمارے منسٹری کے بہت سارے لوگ، ادرس منسٹری کے بہت سارے لوگ پیچھے سے یہاں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ میرے لیے آنر کی بات ہے، میرے لیے واقعی خدا کا فضل ہے کہ میں اس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ سب کہیں گے ہاللویا۔ جی کلام پڑھیں گے دوبارہ سے دوسرا حصہ، یعقوب کا خط 5واں باب اور اس کا دوسرا حصہ پڑھوں گا۔ لکھا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے، میرے ساتھ رہے گا، بہت کچھ ہو سکتا ہے، پر ہوتا ہو اثر رکھتی ہے، کر کے جاتا ہے۔ سب کہیں گے ہاللویا۔ اور ہم یہاں پر تقریباً سبھی اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور ہم اس راست بازی کو کام کو پورا کر کے ہم اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ ہم راست باز ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو باتیں کرنے جا رہا ہوں، جو کلام آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ خدا نے ڈائریکٹ مجھ سے کیا اور میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ کلام کہتا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے، ہاللویا، اس کے دعا کے اثر سے، اس کی دعا کے اندر ایک پاور ہے، اس کی دعا کے اندر ایک قوت ہے، اس کی دعا کے اندر ایک ایسا کرنٹ ہے، اس کی دعا کے اندر ایسی ایک پاور ہے جو کچھ بھی کر سکتی ہے، جو کسی بھی چیز کو مہیا کر سکتی ہے، جو کسی بھی چیز کو تبدیل کر سکتی ہے، جو کسی بھی ماحول کو تبدیل کر سکتی ہے۔ سب کہیں گے ہاللویا۔ ابھی ہم گیت گا رہے تھے، صدر کلیسیا اور عبدالرجوع کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی وہ آگ ان کے کپڑوں کے لیے چلتی تھی، صرف ان کے باندھنے والوں کے لیے وہ آگ تھی، چلانے والوں کے لیے وہ آگ تھی،
लकड़ी के लिए वो आग थी, देखने वालों के लिए आग थी, लेकिन सब्र में से और अब्दुल जू ऐसे लोग थे जिनके लिए वो आग नहीं थी। सब कहेंगे हालेलुया। क्यों आग नहीं थी? सदरक मिस्र और अब्दुल जू और दानियल 4 दोस्त हैं, यंग लोग हैं, नौजवान हैं, और ये करते क्या है? दानियल के बारे में लिखा है वो दिन में 3 दफा हालेलुया क्या बोलते हैं वहां से हालेलुया। जब उनकी मौत पर जब लिख दिया गया कि तुमको शेरों की मांग के अंदर डाल दिया जाएगा, तब भी उसने दुआ नहीं छोड़ी। सब कहेंगे हालेलुया। और आप क्या समझते हैं कि उसने शेरों की मांग में जाकर दुआ की होगी? वो असर की थी? नहीं, वो दुआ असर नहीं की थी। वहां जाकर तो वो हमल में था, इत्मीनान में था, उसको पता था मेरे पास दुआ का इतना पीछे क्या कहते हैं उसको डिपॉजिट है, इतना पीछे बैलेंस है कि वो शेरों के मुंह को बंद कर सकता है। ये उसकी दुआ का असर था। सब कहेंगे हालेलुया। ये बहुत दुआ थी जो 3 दफा वो करता था और उसका इफेक्ट, उसकी पावर ने शेरों के मुंह को बंद कर दी। सब कहेंगे हालेलुया। वो खुदा जिसके जलाल की हम बात कर रहे थे, वो कर तो सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अकेला नहीं। उसको मुझे और आपकी जरूरत है, मेरी और आपकी सोच की जरूरत है। मुझे और आपको उसकी दूरी में बैठकर उसकी दूरी में जब बैठ जाएंगे, फिर एक वक्त आएगा कि उसका इफेक्ट नजर आएगा। हालेलुया। उसका असर नजर आएगा, उसकी पावर नजर आएगी। और पावर वो नहीं जो बोल कर करते हैं, वो एक लहजा है, वो आपका अपना एक पैशन है। आप जोर से दुआ करते हैं, आप धीरे से दुआ करते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट कितना है ये मायने रखता है। सब कहेंगे हालेलुया। कलाम में लिखा है पावरफुल और इफेक्टिव है। और आगे थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं जी। वहीं से 17वीं आयत, माइक हाथ में रखिए। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। जी, एलिया हमारा कौन था? हम तबीयत, जस्ट लाइक अस, हमारे जैसा, हमारी तरह कपड़े पहनता था, हमारी तरह खाता था, हमारी तरह उठता बैठता, सोता जागता, डरता, सब कुछ हमारी तरह। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, हमारी तरह वो पैदा हुआ। सब कहेंगे हालेलुया। फिर क्या हुआ जी? उसने बड़े जोर से दुआ की। उसने बड़े जोर से दुआ की। उसने बड़े जोर से दुआ की। और इंग्लिश में पढ़े तो वहां पर लिखा है प्रेयर अनेस्टली। अनेस्टली का मतलब क्या है? संजीदगी के साथ, संजीदा होना। जोश जो हमें नजर आता है वो भी ठीक है, लेकिन एक और जोश है अंदर का है कि आपकी संजीदगी, जब आप दुआ करते हैं, जब आप दुआ को लोग हैं, जब रास्तबाज हैं, जब आप प्रेयर करने के लिए जाते हैं, हम संजीदा कितने हैं। और वो संजीदगी उसकी बड़ी जबरदस्त। वहां पर लिखा उसने संजीदगी, इंग्लिश को पढ़े तो उसका तर्जुमा करते हैं तो लिखा उसने बड़ी संजीदगी से दुआ की। यानी जिस मकसद के लिए वो बैठा, उसने उस मकसद को संजीदा लिया, उसके साथ सिंसियर हुआ, उसके साथ उसका एक लगाव हो गया। अक्सर आपने सुना होगा, कहते हैं जॉब जो करने जाता है तो सिंसियर नहीं, संजीदा नहीं है। बंदा मेरे नाल ते है पर मेरे नाल संजीदा नहीं, मतलब ये रहता मेरे नाल है पर ध्यान किते हो रही है, मेरे मकसद जरा कुछ हो रहे पर करता कुछ हो रहे। यहाँ पर लिखा है एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था और उसने क्या किया? उसने बड़े जोश से दुआ की। मैं खोल दिया पहला सलातीन 17 बात निकाल। जी भाई तनवीर आप पढ़िएगा। थैंक यू लॉर्ड। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। फिर जी उसने बड़े जोर से दुआ की कि मी ना बरसे, मी सब कहेंगे मी, मेरी तरफ देखे मी ना बरसे। ये उसकी प्रेयर रिक्वेस्ट थी, ये उसकी वो रिक्वेस्ट थी जो खुदा के सामने उसने रखी। ये उसका वो एक पॉइंट था जिसको लेकर वो बैठ गया, जिसके साथ वो सलीका हो गया, जिसके साथ उसने बड़े गुंडू कहती है बड़े जोर से उसने एक सामने को फोकस करके दुआ की और उसने कहा मी ना बरसे। और फिर क्या हुआ जी? पढ़े भाई तो नहीं पढ़िएगा। चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर भी ना। हाँ जी, उसकी दुआ का असर आसमान तक गया, उसकी दुआ का इफेक्ट आसमान पर हुआ, उसकी दुआ का असर आसमान के उस सिस्टम में जाकर टकराया और उस सिस्टम को उसने बंद कर दिया जो बारिश बरसाता है। सब कहते हैं हालेलुया। बारिश कौन बरसाता है? मेरा और आपका खुदा ही बरसाता है। लेकिन कलाम में लिखा जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो कहां पर खुलेगा? कहां पर खुलेगा? सब कहेंगे
सब कहेंगे हालेलुया। उसने बाल के बुतों को पूजना शुरू कर दिया है, उसने पूजा करनी शुरू कर दी है। वो कहता है बाल का पुजारी सब कुछ कर सकता है, वो कहता है बाल का पुजारी ये कर देगा वो कर देगा। ऐ खुदावन मैं आज ये प्रेस कर सकता हूँ, मैं तेरे सामने खड़ा रहता हूँ, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि एक ही खुदा है जो जमीन और आसमान का खुदा है, और वो जब आसमान से बारिश बरसाने की कुदरत सिर्फ और सिर्फ एलिया के खुदा के अंदर है। सब कहेंगे हालेलुया। पावरफुल प्रेयर, वो पावर जो सामने नहीं, वो पावर जो आपके इर्द गिर्द नजर आए, वो इफेक्ट जो आपकी जिंदगी में नजर आए, वो इफेक्ट जो आपकी बीवी में नजर आए, वो इफेक्ट जो आपके शौहर में नजर आए, वो इफेक्ट जो आपकी कलीसिया में नजर आए। सब कहेंगे हालेलुया। फिर से कहेंगे हालेलुया। उसने दुआ की, इसने कहा खुदावंद बारिश को बंद कर दे, आसमान को बंद कर दे 3.5 साल के लिए, फिर देखते हैं कैसे कहां से पानी बरसाता है, ये इसका बाल देवता कुछ करता है या नहीं करता। लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ जी? दोबारा पड़े भाई उसी को अगला हिस्सा। थैंक यू लॉर्ड। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था जी। उसने बड़े जोर से दुआ की कि मींह ना बरसे, चुनांचे 3.5 वर्ष तक जमीन पर मींह न बरसा। हाँ जी। फिर उसने दुआ की तो फिर उसने दुआ की, एक दफा दुआ की मीना बरसे, और फिर दूसरी दफा फिर दुआ में बैठ गया, फिर दुआ करता है, फिर कहता है अब क्या कर खुदावंद अब बारिश बरसा दे। अब वो अखियत बादशाह मुझे ढूंढता ढूंढता आ गया है, वो मुझे ढूंढ रहे कि किसी तरह से दोबारा दुआ करवाई जाए कि उसका असर फिर से आसमानों तक जाए और आसमान दोबारा से खुल जाए। हालेलुया। पहला सूरा 3:17 बाब उसकी पहली आयत पढ़िए जी। पहला सलाती 17वीं बाब और उसकी पहली आयत से जी। और एलिया तिशबी हाँ जो जी। जलाल के परदेसियों में से था हाँ जी। अखीयब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, इस्राएल के खुदा के हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, जिसके सामने मैं, सब कहेंगे जिसके सामने मैं हो, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूँ, जिसके सामने बैठ में देखता हूँ, जिसकी वर्शिप मैं करता हूँ, जिसके नाम को ऊंचा और बुलंद मैं करता हूँ, जिसके लिए मैं बजाता, मैं गाता और मैं खुदा की हजूरी में झुकता हूँ, मैं उस खुदा की बात कहता करने लगा हूँ। क्या होगा जी? फिर पढ़े। खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, जी। जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन वर्षों में ना औस पड़ेगी ना मींह बरसेगा। हाँ जी। बारिश से दूर दी गल औस भी नहीं पेगी ते ना ही नहीं बरसेगा। मींह ते पता चलता है, औसा से पता नहीं चलता कि रात को मेरी औस आती है वो भी नहीं बरसेगी। मेरे खुदावन के अंदर इतना असर है। पर ये क्या करता है? ये कहता है मैं खड़ा रहता हूँ, मैं रहता हूँ उसके सामने, मैं उसकी पावर को जानता हूँ। जिसे नाल पता नहीं था उसकी पावर का पता होगा। सब कहेंगे हालेलुया। फिर से कहेंगे हालेलुया। जिसके साथ बंदा रहता है उसके पावर का पता होता है। कुछ लोग ऐसे बगैर डॉक्यूमेंट के बाइक चलाते हैं, उनको कोई डर नहीं, तो कहते हैं इसको मैं कार्ड दिखा दूं, इसको मैं अपने पापा का कार्ड दिखा दूं, और मेरा मामा पुलिस से होता है। तो ये कहां पर खड़ा रहता है? इस्राएल के खुदावंद की बात करता है। कहता है उसके सामने क्या रहता हूँ? दुआ में रहता हूँ, प्रेयर में रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ। उसने दुआ की 15वीं आयत स्किप करके 15वीं आयत पढ़े सिर्फ। सो उसने जाकर जी। एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। जी। ये साहब किसेला की बात हो रही कि वो वहां पर दुआ वो लोग जहां पर जाते हैं वहां पर इफेक्ट नजर आता है, वहां पर पावर उनकी नजर आती है कि वो किस खुदा के सामने रहते हैं। मैं जो आज आपकी बात कर रहा हूं वो है, हम रास्तबाज अगर हैं, हमने अगर तौबा कर ली है, बैप्टाइज हो गए हैं, हमने अगर खुदावंद को कबूल कर लिया है, तो फिर मेरी और आपकी दुआ का असर होना चाहिए। सब कहेंगे हालेलुया। और खुदावंद के लोग जहां पर भी खड़े होते हैं उनका इन्फ्लुएंस, उनका एक अलग से असर होता है। जैसे एक सियासी बंदा जब आता है ना, सियासत वाला बंदा जब आता है, तो वो इलाके से अलग ही एक असर होता है, वो सीट का, ओहदे का, अथॉरिटी का। इसीलिए इसी तरह मैं और आप जब हम खुदावंद के लोग हैं तो फिर हमारा भी असर
ہونا چاہیے، پھر ہمارا بھی اثر کہیں نہ کہیں نظر آنا چاہیے، پھر ہمارا اثر بھی کہیں نہ کہیں ضرور نظر آنا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ 18ویں باب کی 15 آیت طرف پڑھتے ایک دفعہ۔ پہلا سلاطین 18ویں باب کی ہاں جی 15 آیت۔ ڈائریکٹ پڑھتے جائیں جی 15 تب ایلیا نے کہا، تب ایلیا نے کہا، رب الافواج کی حیات کی قسم، رب الافواج کے یاد کی قسم، جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، جس کے سامنے پھر کہتا پھر یاد دلاتا کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں جس کے سامنے کھڑا ہوں۔ پہلے اس نے یاد دلایا، پھر ایک اثر دکھایا، اب پھر کچھ کرنے جا رہا ہے۔ پھر خدا انٹروڈیوس کس کو کراتا ہے؟ انٹروڈیوس خدا کو ہی کرانا ہے۔ میرا اور آپ کا خدا ہی جلال پائے گا ہر ایک بات میں، ٹھیک ہے؟ لیکن نظر ہم آئیں گے، ہماری دعاؤں کا اثر نظر ضرور آئے گا، لیکن انٹروڈیوس کس کو کرواتا ہے؟ میں جس کے سامنے کھڑا رہتا ہوں، یہ اس کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ آج پڑھ دے آگے اسی کی۔ اس نے جواب دیا، میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا۔ آج یہ کہتا جی تیری وجہ سے اسرائیل کا 13.5 سال کوئی کھیلوں کو مرتے نہیں، کیونکہ تو دعا کیتی ہے کہ کوئی زمین تے خوراک نہیں ہو رہی، کوئی بارش نہیں ہو رہی، اور لوگ بھوکے مرتے ہیں تیری دعا کی وجہ سے۔ کہتا تو لوگوں کو ستایا، لیکن یہ کچھ کہتا میں نے لوگوں کو نہیں ستایا۔ جی اس نے جواب دیا، میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا، اسرائیل کو نہیں ستایا، بلکہ تو اور تیرے باپ کے گھرانہ نے، کیونکہ تم نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا۔ ہاں جی، اصل بات یہ تھی کہ اس نے یہ دعا کی کیوں تھی؟ کیونکہ یہ اپنے خدا کو ثابت کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ چاہ رہا تھا کہ میں بتاؤں کہ میرا خدا کس قدر پاورفل ہے۔ پڑھتے آگے۔ تم نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا، جی تم نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا، اور تو بالیل کا پیرو ہو گیا۔ ہاں جی، اس لیے اب تو قاصد بھیج اور سارے اسرائیل کو اور بال کے 450 نبیوں کو اور یسیرت کے 400 نبیوں کو جو ایزبل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں، کوہ کرمل پر میرے پاس اکٹھا کر دے۔ آمین۔ 25 آیت پڑھیں گے، اسٹوری سے آپ سب واقع ہے جلدی سے۔ سو ایلیا نے بال کے نبیوں سے کہا، ہاں جی، بال کے نبیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے ایک بیل چن لو، تم اپنے لیے ایک بیل چن لو اور پہلے اسے تیار کرو، کیونکہ تم بہت سے ہو، ہاں جی، تو بہت سے ہو، اور اپنے دیوتا سے دعا کرو، اپنے دیوتا سے کیا کرو؟ دعا کرو، کیا کرو؟ سب کہیں گے ہاللیلویا، کیا کرو؟ میرے طرف دیکھ کر کہیں گے کیا کرو؟ اپنے دیوتا سے تھوڑا دعا کرو۔ جی آگے۔ لیکن آگ نیچے نہ دینا۔ نہیں، آگ ہی نیچے دے، آگ تمہارا دیوتا اتارے۔ تم پہلے کر لو، پہلے چندن جتا لو۔ اور یہاں پر لکھا ہے، اگر آگے جا کر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے انہوں نے دعا کی، وہ آگے پیچھے بہت کچھ شور مچایا، انہوں نے اپنے حساب سے بہت دیر کی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ سب کہیں گے ہاللیلویا۔ اور 36 آیت میں لکھا ہے، شام کی قربانی چلانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا، اس نے کہا، اے خداوند ابراہیم اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا سب کہیں گے ہاللیلویا۔ آپ کی دعاؤں کا اثر یہ ثابت کرے گا کہ آپ خدا کے بندے ہیں، آپ رائٹس مین ہیں، آپ راستباز ہیں، آپ نے توبہ کی ہے، آپ کے ٹائمز ہوئے ہیں، روز پایا ہے۔ آپ کی دعاؤں کا اثر آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں، بیوی میں، بچوں میں، شوہر میں، ہر جگہ نظر آنا چاہیے۔ یہ بات ہے، یہ میسج ہے آج کا، سب کہتے ہیں ہاللیلویا۔ کیونکہ راستباز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور اسی بہت کچھ کے اندر میری اور آپ کی ضرورتیں، میرے اور آپ کے معاملات، میری اور آپ کی بیماری، میرے اور آپ کی فائنینشیل پرابلم، بہت کچھ ہے، لیکن یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے کب؟ جب ہم انڈرسٹی پرے کریں گے، سنجیدگی کے ساتھ پرے کریں گے، جوش کے ساتھ پرے کریں گے، فوکس کر کے پرے کریں گے، کلام کے ساتھ پرے کریں گے، سب کہیں گے ہاللیلویا۔ اور 36 آیت میں لکھا ہے، 37 سے 38 آیت، تب خداوند کی آواز 37 میں لکھا، میری سن ہے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے سوکھتی قربانی کو لکڑیوں پتھروں سمیت، لکڑیوں اور پتھروں سمیت، مٹی سمیت بھسم کر دیا۔ لکڑی بھسم ہو جاتی ہے، پتھر کو قائم کرتا ہے، لیکن یہ آگ ایسی ہے اس کے پاس کوئی
हालेलुया। ये फौरन से पत्थरों को खत्म करने की कुदरत उस आग के अंदर है जो मेरी और आपकी दुआ उतार सकती है। लेकिन हम करें तो फिर, ठहरे तो फिर, रुके तो फिर, फोकस करके कि ये करना है खुदावंद। एलिया के सामने और भी बहुत कुछ था, लेकिन उसने कहा नहीं, ये जो बाल का पुजारी बन गया ना, इससे तो मैंने इसको वापस लाना ही लाना है। इसलिए मैं अब इसको बताऊंगा कि खुदा ही है जो ये काम कर सकता है। सब कहेंगे हालेलुया। और खुदावंद ने अपने जलाल को जाहिर किया और वहां पर वो इफेक्ट नजर आया, वहां पर वो पावर नजर आई, वहां पर वो कुदरत काम करती और चलती फिरती नजर आई। सब कहेंगे हालेलुया। हम खुदावंद की हमदोसना और दुआ इसलिए करते हैं ताकि उसका असर नजर आए, और अगर असर है तो फिर वाकई वो दुआ आपकी कामयाब है। लेकिन असर नहीं है तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी और आपकी दुआ में, कहीं ना कहीं मेरे और आपके झुकने में कहीं ना कहीं कोई मसला, प्रॉब्लम तो है। सब कहेंगे हालेलुया। याकूब का 4 बाब उसकी 3री आयत, जल्दी से पढ़ते इसको क्लोज करने जा रहा हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। एलिया ने जब दुआ की तो उसके पीछे मकसद क्या था? थोड़ा सा आगे बढ़ते, पर्पस क्या था? खुदा को साबित करना कि बाल कुछ नहीं है, खुदा सब कुछ है। उसने इसलिए प्रेयर करना शुरू की। तो क्या खुदा उसकी दुआ के बगैर ये साबित नहीं कर सकता था? नहीं कर सकता। खुदा को आपकी और मेरी जरूरत है। हम जमीन पर रहकर जब तक संजीदा नहीं होंगे ना, हमारे कोई भी मामला हल होने वाले नहीं है। फिर चुप करके जैसे है वैसे चलता रहेगा। पढ़ दे याकूब का 4 बाब 3री आयत, जल्दी से पढ़ दे डायरेक्ट। तुम मांगते हो जी, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते। वजह ये है कि नीयत क्या है पीछे, वजह ये है कि मोटिव क्या है उसका, वजह ये है कि किस लिए मांग रहे हो। अब ये बारिश को बंद कर रहा है, बारिश को खोल रहा है, किस लिए, वजह क्या है? बताएं क्या वजह? अभी तो बताया। When you ask, you don't have to receive because you are asked with wrong motive। हमारा दुआ का मोटिव क्या है? किस मोटिव से आप बैठते हैं दुआ में? क्या मांग रहे हैं? उसके अंदर आपके सारे मामला हैं। खुदा कर दे, खुदा कर दे, खुदा कर दे, खुदा कर दे। खुदा का कोई भी मकसद हो इसको नहीं। इसका मकसद क्या था? अपने लिए कुछ करना? अरे उसके लिए तो खुद ही खुदा ने इंतजाम कर दिया था। और सिर्फ खुदा की गैरत रखी। कलाम में लिखा है हर किसी को अपनी गल की फिक्र ना के मसीह वो कहता मेरी बादशाही की तरह तलाश करो तो सारी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर लिखा है तुम मानते हो पर तुम्हें मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पीछे मोटिव खुदा का इसमें कोई मकसद नहीं होता। हमारी पर्सनल चीजें होती हैं। हम सेल्फिश इस मामले में दुआ करने में, खुदा उसका दुआ कर दे, मेरा मसला हल कर दे, मेरा मसला हल कर दे, मेरा मसला हल कर दे। लेकिन खुदा ने भी कुछ मसले नहीं जो तुसी हल करने उन्होंने वास्ते खुदा ने त्यानू तकवीयत दी, त्यानू तोड़ दिता, त्यानू कुवत दी, त्यानू बरकत दी। सब कहेंगे हालेलुया। जब आप प्रेयर करते हैं, जब हम दुआ करते हैं तो चूहे फसल लाते टूटती हैं, लेकिन कैसी प्रेयर, इफेक्टिव प्रेयर जो है वो कहीं ना कहीं जाकर असर करती है। आखिरी दौर में एक बात बताना चाहता हूँ, रेफरेंस आपने पढ़ा हो ईमान की किताब 16 बाब और 16 आयत जब पढ़ते हैं तो वहां पर एक क्या दिखाना है? फिलिप्पी का कैद बना। वहां पर 2 राष्ट्रवादों को कैद कर दिया। 2 राष्ट्रवाद आधी रात के करीब, कैसी उनकी हालत आप पढ़ के देखिए। कपड़े उनके फटे, पैंट उनको लगाएंगे, खींचा गया, हजूम ने मारा है, लेकिन अपनी दुआ से नहीं हटे। साढ़े तो हमारी जो मुसीबत है सब तो पहला ही दुआ छाड़ दे, सब तो पहला चर्च छाड़ दे। भाई सब ठीक कर गया, मसला हल हो जाए फिर चर्च आवांगे। मैं शाबाश नहीं फिर हल होगा, क्योंकि जितने हल होगा उसे तू और नहीं लिया, तेरे जिसने उधर लाया तेरा हल होएगा फिर ही आए। लेकिन वो वहां पर उनके पांव काट में चुके हैं, जेल के अंदर है, और वहां पर लिखा है कैद खाना की नींव मिल गई। सब कहेंगे हालेलुया। लेकिन उनकी वो 2 मिनट की दुआ, 5 मिनट की दुआ, 4 मिनट की दुआ थी नहीं। अगर आप 16 बाब की सोच के से लेकर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पर लिखा है वो बहुत दिनों तक वो दुआ करने की जगह जा रहे थे। बीच में केस बन गया, बहुत दिनों तक वो जाते रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो हमारी दुआएं हैं, जब वो उनका जवाब नहीं आया होता वो स्टोर हो रही होती है। और एक दिन आता है जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना, उस वक्त खुदा उतरेगा, फिर आग को ठंडा करेगा। उस वक्त उतरेगा, उस दिनों में करेगा, उस वक्त उतरेगा और कैद खाना की वो हिल जाएगी, कैद खाना की वो हिल जाएगी। वो कैद खाना बीमारी का हो, वो कैद खाना बेऔलादी का हो, वो कैद खाना आपकी जिंदगी में नशे का हो, वो कैद खाना कैसा भी हो, वो कैद खाना गुनाह का हो, सोशल मीडिया के सिन का हो, पावर ऑफ सिन टूट जाता
जाती है, जब जोश के साथ प्रे की जाती है, जब एक टारगेट रखकर प्रे की जाती है, खुदावंद अपने जलाल को सब कहेंगे हालेलुया। यहाँ पर लोगों का हैरान रह गया और बड़ा निजात का काम हुआ। वो खुदा के लोग किसी भी जगह पर हो, वो जेल खाना में हो, वो चर्च में हो, वो बेडरूम में हो, वो घर में हो, कई बार भी हो, रात में हमने सीखा है वो दुआ कर सकते हैं उस फोकस को लेकर, अनस्त होकर, उसके साथ संजीदा होकर। जब आप दुआ करेंगे वो दुआ का असर आपको नजर आएगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सब आपको बरकत दे।